I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'ad. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. The topic of my today's talk is Creator of the Universe, Allah subhanahu wa ta'ala in the world's major religions. आज की हमारी तकरीर का उन्वान है सारी कायनात का मालिक यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया के तमाम मज़ाहिब की किताबों में. इंशाअल्लाह in the very short span of time, I will prove that there is a creator of this creation and that is only Allah subhanahu wa ta'ala. Scientist Eugene Wigner, a Nobel laureate in physics, he says that intelligibility of the universe points towards the creator of the universe, that is the God. Scientist Lord Kelvin, famous for degree Kelvin, says that do not be afraid of being a free thinkers. If you think strongly, science will force you to believe that there is a creator, that is the God. Scientist Schrödinger, famous for two equations, time dependent and time independent. He says that the scientific picture of the world is very deficient. It talks lots about the factual information. It keeps our thinking as well as imagination in a very consistent order, but it keeps ghastly silent about the things which are very close to us, which are very nearer to our heart, that is red and blue, sweetness and bitterness, happiness and sadness, God and eternity. Scientist Steven Weinberg, who got the Nobel Prize in 1979, he says, I believe in the existence of God and I believe that there is a creator of the universe and he has created this universe with purpose. Scientist Abdus Salam, the Pakistani Nobel Prize in Physics, who bagged the Nobel Prize in 1979 along with Sheldon Glashow and Steven Weinberg for unifying the two forces, weak and electromagnetic forces,
for the elementary particles. Scientist Abdus Salam, the Nobel Prize in Physics from Pakistan, says that glorious Quran enjoins us to reflect on the created laws of Allah subhanahu wa ta'ala. साइंटिस्ट अब्दुल सलाम, जिन्हें नोबेल प्राइज 1979 में मिला फिजिक्स के लिए, जो पाकिस्तान के तन्हा नोबेल प्राइज विनर हैं, उनका कहना है कि ग्लोरियस कुरान हमें यह दावत दे रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए तमाम कानूनों पर हम गौर करें। हम आपको बता दें कि साइंस की दुनिया में, इन द फील्ड ऑफ साइंस, देयर आर ओनली 2 नोबेल लॉरेट्स. One is Abdus Salam from Pakistan in physics, and second is Zawel Ahmed. He is from Egypt, having dual citizenship, that is from Egypt and America. He got the Nobel Prize in chemistry for femtosecond, that is top quarks, in 1999. नोबेल प्राइज की दुनिया में साइंस में सिर्फ 2 साइंसदां हैं, एक फिजिक्स में अब्दुल सलाम और दूसरे केमिस्ट्री में ज़वेल अहमद. The very famous scientist, but not yet got the Nobel Prize, Stephen Hawking, is either agnostic or deist or something in between the two. As far as creator of the universe is concerned, some people call the creator of universe in English by word God. In African language by Gott, G-O-T. In German language by Gott, G-O-T-T. And in Danish, Swedish and Norwegian language, it is good, G-U-D-D. It means that people across the world call the creator of the universe in different languages by different names. But we Muslims in Arabic, we call creator of the universe by Allah subhanahu wa ta'ala. The word Allah subhanahu wa ta'ala is unique. It is single, unequal, unparalleled. Allah says in glorious Quran, chapter number 3, Surah Al Imran, verse number 19, Inna ad-deena indallahil Islam. Indeed, the best religion in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. And Allah is saying glorious Quran, chapter number 17, Surah Bani Israel, chapter number 17, Surah Bani Israel, verse number 110. Qul id'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. You call him by Allah or you call him by Rahman. By whatever names you call, all the beautiful names belong to Allah subhanahu wa ta'ala. The word Allah and the verse which I recited is again repeated in glorious Quran at various places. Chapter number 7, Surah Araf, verse number 180. Chapter number 20, Surah Taha, verse number 8. Chapter number 59, Surah Hush, verse number 23 and 24. As I told you, the word Allah is unique. It cannot be changed, whereas the English word God can be changed with English. If you put the prefix tin, it's a tin God, means fake God. If you put S, it becomes gods, many gods. If you put ES, it becomes goddess, female god. If you put mother and father, it becomes godfather and godmother.
Whereas in Arabic word Allah, no one can make any change. That's why we Muslims in Arabic, in Islam, we call Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has got 99 names. Al-Khaliq, the creator. Al-Kareem, the benevolent. Ar-Rahim, the merciful. Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala has got beautiful names. So, by whatever names out of these 99 we call, all the beautiful names belong to Allah subhanahu wa ta'ala only. Allah तबारक व तआला के 99 नाम हैं. जिस भी नाम से हम पुकारें उस अल्लाह तबारक व तआला को, सब नाम उसके बेहतरीन नाम हैं. Then the term religion. The term religion, according to Oxford American Desk Dictionary, is defined as the belief in a personal God or gods entitled to be obedience and worship. Followers of all the religions, they believe that there is a universal God. The God which is omnipotent and omniscient. The God who is omnipotent and omniscient. At the same time, believers of all the religions also believe that the God which they worship, same God is worshipped by other religious people. The historians say religion is the central point in human existence. Religion is one of the most important aspect of human civilization, along with the ethical systems that completes our civilization. But as I told you, the most appropriate name for the creator of the universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Religion is broadly classified into two types, that is Semitic and non-Semitic. Semitic religion is a prophetic religion which believes in the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala as well as the prophets, that is the Judaism, Christianity and Islam. Non-Semitic religion is further divided into two types. Number one is Aryan, number two is non-Aryan. Aryan religion is further divided into two types, that is Vedic and non-Vedic. The Vedic religion is Hinduism, whereas the non-Vedic religions are Sikhism, Jainism, Buddhism and Zoroastrianism, so-called Parsism. The non-Aryan religion is, it is not a religion in fact, it is an ethical system. Just like in China, it is called Confucianism and Taoism. And in Japan, it is called Shintoism. Now let us see first of all Islam. आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में. The religion Islam, it believes in a single God, the single creator, that is Allah subhanahu wa ta'ala. In my talk, as I told you, the most appropriate name for the creator of the universe is Allah subhanahu wa ta'ala, but I may be using word God for the sake of convenience so that my non-Muslim brothers can get the message very rightly. Very conveniently they get the message what I am conveying to them. The word Islam, it is derived from salam and silm. Salam means peace and silm means submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala. That means
peace acquired by submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala. इस्लाम दो लफ्जों से बना है, सल्म और सिल्म। सल्म का मतलब होता है अमन, सिल्म का मतलब होता है अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना, यानी अमन को हासिल करना अपने आप को अल्लाह के हवाले करके। यूं हम कह सकते हैं कि इस्लाम का मतलब हुआ कि अमन को हासिल करना, शांति को हासिल करना अपने आप को अल्लाह तबारक तआला के हवाले करके। द रिलीजन इस्लाम which we Muslims follow believes in a single God, that is Allah subhanahu wa ta'ala, and all the revelations, all the books which has been revealed by Allah subhanahu wa ta'ala on the prophets, and all the prophets ranging 1,24,000 with the last messenger Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. We believe in Adam, peace be upon him, from Adam to Ibrahim, peace be upon him, Noah, peace be upon him, Ishaq, peace be upon him, that is Isaac. We believe in Ismail, peace be upon him. We believe in Yaqub, peace be upon him. And we believe in the descendants of these prophets, that is Yusuf, so-called Joseph, peace be upon him. At the same time, we believe in all these messengers, Joseph, Moses, peace be upon him, and the second last prophet, Jesus, peace be upon him, and the final messenger, Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. In Islam, we believe a single creator, all the revelations and all the prophets, starting from Adam, peace be upon him, till the final and last messenger, Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The word Islam is mentioned in glorious Quran in chapter 3, Surah Al Imran, verse number 19. Chapter 3, Surah Al Imran, verse number 18, 5. Chapter number 61, Surah Saf, verse number 7. Chapter number 5, Surah Ma'idah, verse number 3. Allah says in glorious Quran, chapter number 3, verse number 64. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. I repeat, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, say, O people of the book, come to the common terms between us and you, that we do not worship but Allah subhanahu wa ta'ala, and we do not associate any partner with Allah subhanahu wa ta'ala, and we do not erect among ourselves Lord and patrons beside Allah subhanahu wa ta'ala. If they turn away, then O Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, you say that at least bear witness that we are Muslims bowing to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam, आप फरमा दीजिए, ऐ किताबियों आओ उस कलिमे की तरफ जो हम में और तुम में यकसा है। वो कलिमा ये है
कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, और उसके साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहराते, और हम अपने लोगों में से किसी को खुदा नहीं मानते सिवाय अल्लाह सुब्हान व तआला के। ए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर वो पलट जाएं तो उनसे कह दीजिए कि कोई बात नहीं, लेकिन गवाह हो जाओ कि हम मुसलमान हैं। द वन हु बिलीव्स इन इस्लाम इज कॉल्ड मुस्लिम। जो इस्लाम में यकीन रखते हैं उन्हें हम मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम। द वर्ड मुस्लिम इज रिपीटेड इन ग्लोरियस कुरान, चैप्टर नंबर 3 सूरह आल इमरान वर्स नंबर 52, चैप्टर नंबर 3 सूरह आल इमरान वर्स नंबर 64, चैप्टर नंबर 3 सूरह आल इमरान वर्स नंबर 84, चैप्टर नंबर 41 Hamim Sajda verse number 33. It means that Muslims believe in single creator Allah subhanahu wa ta'ala, all the revelations and the final messenger Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Theology, theo means God, logy means study, that is study of God. The best definition regarding the creator of the universe, that is Allah subhanahu wa ta'ala, is given in the final book of Allah subhanahu wa ta'ala, that is glorious Quran, chapter number 112, Surah Ikhlas, verse number 1, 2, 3, 4. Allah says in glorious Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. O Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, say, He is Allah the One. Allah is independent, carefree, eternal. He begot none, nor he was begotten, and none is equal to him. ए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला एक है। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, न तो कोई उसकी औलाद है, न तो वो किसी से पैदा हुआ, और उसके जोड़ का कोई नहीं। This is the touchstone, litmus test, acid test of theology. एक कुरान की वो 4 आये करीमा है जिसके जरिए हम एक वाहिद खुदा के बारे में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और एक कह सकते हैं कि वाहिद खुदा में ये सिफतें मौजूद हैं। बाकी जितने लोग दावा कर रहे हैं कि ये खुदा हैं, वो खुदा हैं, हम तभी मानेंगे जब ये सिफतें उनमें मौजूद हो, और इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत तक ये सिफतें उनमें कभी भी नहीं पाई जाएंगी। अल्लाह सेज इन ग्लोरियस कुरान, चैप्टर नंबर 42, सूरह अश-शूरा, वर्स नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शैआ, देयर इज नथिंग इक्वल टू हिम। अल्लाह तबारक व तआला जैसा कोई भी शय नहीं है। अल्लाह सेज इन ग्लोरियस कुरान, चैप्टर नंबर 6, सूरह अनाम, वर्स नंबर 14, ही फीड्स बट ही इज नॉट फेड। वो लोगों को खिलाता है लेकिन खुद नहीं खाता है। अल्लाह सेज इन ग्लोरियस कुरान, चैप्टर नंबर 2, सूरह बकरा, वर्स नंबर 255, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ही इज अल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह सुब्हानहु व तआला। He is living, self-subsisting,
eternal, and He is giving life to others. Neither slumber seizes Him nor He sleeps. अल्लाह तबारक व ताला, कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह सुभान व ताला। वो जिंदा है और लोगों को कायम रखता है, लोगों को जिंदगी देता है। न तो उसे ऊंघ आती है, न तो उसे नींद आती है। अल्लाह सुभान व ताला says in glorious Quran, chapter number 85, Surah Buruz, verse number 16. Whatever Allah intends, He does. अल्लाह जो भी ख्याल करता है, जो भी सोचता है, उसे करता है। Allah says in glorious Quran, chapter number 36, Surah Yasin, verse number 82. Innama amruhu idha arada shay'an ayaqul lahu kun fayakun. When Allah wills to do anything, He says to it be and it becomes. अल्लाह जब किसी चीज को करने का इरादा करता है तो उसे कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। Allah says in glorious Quran, chapter number 20, Surah Taha, verse number 52. Neither He errs nor He forgets. अल्लाह सुभान व ताला ना तो गलती करता है, ना तो वो भूलता है। Allah says in glorious Quran, chapter number 4, Surah Nisa, verse number 40. Allah is never unjust even in least degree. अल्लाह तबारक व ताला जरा सा भी नाइंसाफ नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला जरा सा भी नाइंसाफी करने वाला नहीं है। अल्लाह says in glorious Quran, Alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Chapter number 2, Surah Al-Baqarah, verse number 106. Chapter number 2, Surah Al-Baqarah, verse number 109. Chapter number 2, Surah Al-Baqarah, verse number 284. Same message is repeated in chapter number 3, Surah Al-Imran, verse number 29. Same message is also repeated in chapter number 16, Surah An-Nahl, verse number 77. Chapter number 3, Surah Al-Imran, verse number 29. Chapter number 35, Surah Fatir, verse number 1. Allah says in glorious Quran, chapter number 21, Surah Anbiya, verse number 22. If there were other gods in the heaven and the earth, then there would have been confusion. Glory be to Lord of the throne above what they attribute to Him. अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा और खुदा होते तो उनके बीच इख्तिलाफ होता। पाक जात है अल्लाह सुभान व ताला जो अर्श का मालिक है, उसके साथ जो लोग जोड़ते हैं। अल्लाह तबारक व ताला वाहिद है, अकेला है, सिर्फ वही कायनात को बनाने वाला है, सिर्फ वही कायनात का बनाने वाला है। अल्लाह सेज इन ग्लोरियस कुरान, चैप्टर नंबर 23, सूरह मोमिनून, वर्स नंबर 91. Allah does not have a son, and there is not any God with Allah subhanahu wa ta'ala. If it were so, then the gods would have lorded on one another. They should have shown bossism. Glory be to Allah subhanahu wa ta'ala above what they attribute to Him. अल्लाह तबारक व ताला को कोई बेटा नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला के अलावा कोई खुदा नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व ताला के अलावा खुदा होते तो अपनी बनाई हुई चीजों को ले लिया करते
और एक दूसरे पर अपनी फौकियत का इजहार करते। लेकिन पाक-ज़ात अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ कोई शरीक नहीं है, और लोगों को चाहिए कि वह अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ किसी को शरीक न करे। Allah says in glorious Quran, chapter number 2, Surah Al-Baqarah, verse number 79, woe be to those who write a book with their hands and then say it is from Allah subhanahu wa ta'ala for a miserable price. Woe to be those, the hands what writes, and the miserable money what they earn out of that. अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 79 में फरमा रहा है कि लानत है उन पर जो अपने हाथ से किताबों को लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है। थोड़े से पैसा कमाने के लिए, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए लानत है उनके हाथों पर जो वो लिखते हैं, और लानत है उससे जो वो कमाते हैं। Allah says in glorious Quran, chapter number 10, Surah Yunus, verse number 31. You ask them, who has created the heaven and earth? Who has the power over hearing and sight? Who brings life from the dead and dead from the life? Who rules and regulates all the affairs in the universe? Soon they will say, Allah subhanahu wa ta'ala. Then say to them, why they don't fear? ए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन है, समाअत और बसारत का पावर देने वाला कौन है, समाअत और बसारत पर किसका इख्तियार है, मुर्दे से जिंदगी कौन देता है और जिंदे से मुर्दा कौन बनाता है, तो वो बोलेंगे अल्लाह सुब्हान व ताला। तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, तो वो अल्लाह तबारक व ताला से क्यों नहीं डरते? Allah says in glorious Quran, chapter number 43, Surah Zukhruf, verse number 87. If you ask them who created you, they will say Allah subhanahu wa ta'ala. Then how they are deluded away from the truth? ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप उनसे पूछें कि तुम्हें किसने बनाया, तो ये कहेंगे अल्लाह सुब्हान व ताला। तो आप फरमा दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो हकीकत से इतना दूर क्यों है? Allah says in glorious Quran, chapter number 12, Surah Yusuf, verse number 106. Most of the people, most of the men do not believe in Allah without associating partners with Him. बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि अल्लाह में यकीन नहीं रखते बगैर उसके साथ किसी को शरीक किए, यानी वो अल्लाह को मानते हैं लेकिन उसके साथ शरीक भी करते हैं। Allah says in glorious Quran, chapter number 4, Surah Nisa, verse number 48. Allah will not forgive the one who associates partner with Allah subhanahu wa ta'ala. He may forgive if He pleases for other sins. Allah says in glorious Quran, chapter number 4, Surah Nisa, verse number 48, कि अल्लाह तबारक व ताला उन्हें माफ नहीं करेगा जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इसके अलावा अगर चाहे तो दूसरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह सेज इन ग्लोरियस कुरान, चैप्टर नंबर 4, सूरह निसा, वर्स नंबर 116, Allah will not forgive those who take gods other than Allah subhanahu wa ta'ala. If He pleases,
he may forgive other sins. अल्लाह तबारक व तआला उनको हरगिज नहीं माफ करेगा जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ दूसरे खुदाओं को शरीक करते हैं, और अल्लाह अगर चाहे खुश हो तो उसके अलावा गुनाहों को माफ कर दे. Allah says in glorious Quran, chapter number 17, verse number 81. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. O Prophet, say that truth is come, falsehood is gone, and the falsehood was to be perished. ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही था. अल्लाह सेज इन ग्लोरियस कुरान, चैप्टर नंबर 31, सूरह लुकमान, वर्स नंबर 27. इफ ऑल द ट्रीज ऑन द अर्थ आर मेड पेन्स एंड ऑल द ओशंस आर मेड इंक, and 7 more oceans are brought to help this, even though all these will get over, but the glorification of Allah subhanahu wa ta'ala will not be completed. अगर तमाम जमीन के दरख्तों के कलम बना लिए जाएं और तमाम समंदरों की स्याही बना ली जाए और 7 समंदर और लाए जाएं, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तारीफ मुकम्मल नहीं होगी. अल्लाह सेज इन ग्लोरियस कुरान, चैप्टर नंबर 50, सूरह काफ, वर्स नंबर 16. वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद. And indeed, we are closer to them, even closer to their jugular vein. ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, हम उनके शहर रग से भी ज्यादा करीब है. अल्लाह सेज इन ग्लोरियस कुरान, चैप्टर नंबर 2, सूरह अल बकरा, वर्स नंबर 186. वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन. O Prophet, my slaves ask to you about me, say that I am closer to them. I listen to them. Means when they ask questions, I respond. When they do supplications, I fulfill. ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे बंदे आपसे हमारे बारे में पूछते हैं, तो ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि हम उनके करीब हैं, हम उनके सवालों का जवाब देते हैं जब वो हमें पुकारते. तो पता ये चला कि पुकारने वाले को जवाब मिल रहा है, मदद मिल रहा है, लेकिन सब इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे. इसका जवाब कुरान में मौजूद है. अल्लाह सेज इन ग्लोरियस कुरान, चैप्टर नंबर 2, सूरह अल बकरा, वर्स नंबर 18. सुम्मुम बुकुमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन. Deaf, dumb and blind, they will not return to the path. बहरे, गूंगे, अंधे, वो लौट करके आने वाले नहीं हैं. Same message is given in the gospel, that is Holy Bible. Book of Matthew, chapter number 13, verse number 13. Seeing they see not, hearing they hear not, understanding they understand not. देखते हैं वो देखते नहीं, सुनते हैं वो सुनते नहीं, समझते हैं वो समझते नहीं.
Same message is also given in Rig Veda, book number 10, hymn number 71, verse number 4. They see the words written, see not. They hear the words but hear not. वो लिखे हुए अल्फाज देखते हैं लेकिन देखते नहीं. वो लिखे हुए अल्फाज जब वो बोले जाते हैं तो सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं. पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान एक कुरान 1400 साल पहले कर रहा है. और मैं आपको बता दूं कि जितने अंबिया इकराम आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक, सबने एक ही दीन लाया, वो था इस्लाम. इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ऐलान कर रहा है, चैप्टर नंबर 3 सूरह आल इमरान वर्स नंबर 19, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इंडीड द रिलीजन नियर अल्लाह इज इस्लाम. आइए उसके बाद हम देखते हैं हिंदू धर्म. आचार्य महाप्रज्ञ 21वीं सदी 21st सेंचुरी और जैन धर्म में पेज नंबर 46 पर लिखते हैं, देयर इज नो रिलीजन बाय नेम हिंदू. इट हैज गॉट ए ज्योग्राफिकल मीनिंग. इट स्टैंड्स फॉर पीपल लिविंग इन दैट स्टेट. आचार्य महाप्रज्ञ का कहना है पेज नंबर 46 पर कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं. इसका ज्योग्राफिकल मतलब होता है यानी उस एरिया के रहने वाले. पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 74-75 पर लिखते हैं that the word Hindu was used for tantrics of 8th century. इनका कहना है कि हिंदू वर्ड तांत्रिक झाड़ फूक करने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता था 8वीं सदी में. The Encyclopedia of Religion 6690 says that the word Hindu is not found in the books of Hindus as well as the scriptures of Hindus. In none of the books the word Hindu is found before the advent of Muslims in India. पता ये चला कि मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने के पहले हिंदू धर्म की किसी किताबों में या किसी और किताबों में हिंदू वर्ड, हिंदू लफ्ज नहीं था. मैं आपको बता दूं, when Muslims came to India through western passes of Himalaya, at that time they gave the name Hindu to the people of India. जब मुसलमान पर्शियंस और अरब्स जब हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने यहां के रहने वालों का नाम हिंदू रखा. इन्होंने इनका नाम हिंदू दिया. हिंदुइज्म अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, Hinduism is given to the people of India and it was given by Britishers. British authors gave in 1830 to the people of India except Muslims and converted Christians. The Rishi, the Muni, the scholars of Hindu religion, they say that word Hindu is misnomer. The correct word is Sanatan Dharma, the eternal religion, the religion of Vedas. स्वामी विवेकानंद का कहना है कि
Hindu Dharma is a misnomer and the correct name is the Vedantist, यानी वेदों को जानने वाला, वेदों को पढ़ने वाला, वेदों को मानने वाला। हिंदू धर्म की किताबें हैं वेदास, उपनिषद, भगवद गीता, पुराणास and two epics, the great epics, Ramayana and Mahabharata. Let us see first of all Upanishads. Chandogya Upanishad, book 6, section 2, verse 1. Ekam iva divityam. God is only one without a second. ईश्वर एक है, खुदा एक है, दूसरा कोई नहीं है। श्वेताश्वतरा उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर 9। न चास्य चासित जनिता न चाधिपः। He is neither having any parents nor any lord. उस ईश्वर का ना तो कोई पिता है, ना तो उसका कोई ईश्वर है, वो खुद अपने आप में ईश्वर है। Then again in Shvetashvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19, ना तस्या प्रतिमास्ति। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। He is not having any idol, any sculpture. उसकी कोई मूर्ति नहीं। In Shvetashvatara Upanishad, chapter 4, verse number 20, न समदृशेति स्थाति रूपम अस्या न चक्षुषा पाश्याति कस्कनयनम। His form is such that he cannot be seen. No naked eye can see him. उसका रूप ऐसा है कि कोई उसे देख नहीं सकता, कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता उस ईश्वर को। Then Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it is mentioned, those whose intelligence has been eaten by material desires, they worship demigods. जिनके ख्यालों को भौतिकता ने खा लिया है, जिनकी बुद्धि को भौतिकता ने खा लिया है, वो उनकी इबादत करते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने, जिन्हें ईश्वर ने थोड़ा पावर दिया है। Demigod means compelling beauty, compelling power, compelling knowledge. पता ये चला एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर है तो उसकी इज्जत तो होगी लेकिन उसकी पूजा नहीं होगी। एक बहुत अच्छा साइंसदान है, उसकी इज्जत तो होगी लेकिन उसकी पूजा नहीं होगी। एक अच्छा समाज सेवक है, उसकी इज्जत तो होगी लेकिन उसकी पूजा नहीं होगी। यहां तक कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साउथ इंडिया में टेंपल्स बना दिए गए और उनकी पूजा कर रहे, जबकि भगवद गीता में ऐलान हो रहा है कि द वन हुज इंटेलिजेंस इज ईटन बाय मटीरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स। Again in Bhagavad Gita, chapter number 10, verse number 3. And same verse is repeated in chapter number 6, verse number 4, Bhagavad Gita. The one who knows me, beginningless, unborn, supreme Lord of all the worlds. जो मुझे जानता है कि मेरी कोई इब्तिदा नहीं है और न तो कोई इंतहा है,
मैं पैदा नहीं हूं, मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अजन्मा हूं और सारी कायनात का मालिक हूं। पता ये चला कि जो जानता है कि जिसकी कोई ना तो इब्तिदा है, ना तो इंतहा है, ना तो पैदा हुआ है और सारी कायनात का मालिक है। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, ना तस्या प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। He is not having any idol, he is not having any symbol, he is not having any sculpture, उसकी कोई मूर्ति नहीं। In Yajurved, chapter number 40, verse number 8, he is bodiless and pure, उसका कोई जिस्म नहीं है, वो पाक है। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9, अंधात्मा प्रविशान्ति असंभूति मुपासते। आई रिपीट, अंधात्मा प्रविशान्ति असंभूति मुपासते। They enter in utter darkness who worship other than Allah subhanahu wa ta'ala, the created things। वो घोर अंधकार में दाखिल होते हैं जो ईश्वर की बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, लाइक सन, मून, ट्री, रिवर, कंप्यूटर, सैटेलाइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वो घोर अंधकार में दाखिल होते हैं जो ईश्वर की बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, जैसे चांद, सूरज, पीपल का दरख्त, तुलसी का पौधा, नदी, कंप्यूटर, मोटर, कार्स एटसेट्रा एटसेट्रा। देन अथर्ववेद बुक नंबर 20, हाइम नंबर 58, वर्स नंबर 3, देव महाओशी, वेरीली गॉड इज ग्रेट, बेशक अल्लाह महान है, अल्लाह बहुत बड़ा है। देन ऋग्वेद बुक नंबर 1, हाइम नंबर 164, वर्स नंबर 46, एकम साध विप्रा बहुधा वदंत, द सेजेस हैव कॉल्ड द क्रिएटर बाय मेनी नेम्स। ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने ईश्वर को कई नामों से पुकारा है। कहीं एक नाम रखा, कहीं 3 नाम रखा, कहीं 33 नाम रखा, कहीं 33 करोड़ नाम रखा। देन ऋग्वेद बुक नंबर 8, हाइम नंबर 1, वर्स नंबर 1, मां चिदन्यादवी शंसता, वर्शिप only one God, the God equivalent to whom none is there in the entire universe। सिर्फ एक खुदा की पूजा करो। Then ऋग्वेद बुक नंबर 5, हाइम नंबर 81, वर्स नंबर 1, verily great is the glory of divine creator, बेशक उस पाक अल्लाह तबारक व तआला की महिमा अपरंपार है। देन ऋग्वेद बुक नंबर 6, हाइम नंबर 45, वर्स नंबर 16, या एक्या इत्या मुस्तुही, प्रेज हिम अलोन हु इज मैचलेस एंड नन इज इक्वल टू हिम। सिर्फ उसकी तारीफ करो जिसके जोड़ का कोई नहीं है, जिसके बराबर का कोई नहीं। फिर उसके बाद ऋग्वेद बुक नंबर 3, हाइम नंबर 2, वर्स नंबर 1, द वर्ड खालिक इज यूज्ड, दैट इज ब्रह्मा। द वर्ड ब्रह्मा इज यूज्ड हु हैज गॉट 4 heads and on the heads there are crowns। ऋग्वेद में आया बुक नंबर 3, हाइम नंबर 2, वर्स नंबर 1 में कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं
और उनके सर पर मुकुट है। ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर, इसे हम अरबी में खालिक कहते हैं। लेकिन 4 सरों का जिक्र जो आ रहा है, ये वेद और उपनिषद के खुद खिलाफ जा रहा है। ऋग्वेद यजुर्वेद में आया, चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर, उसके पास कोई जिस्म नहीं है, वो पाक है। और यजुर्वेद में आया चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, ना तस्या प्रतिमास्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। फिर श्वेताश्वतरा उपनिषद में आया, ना तस्या प्रतिमास्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। और फिर श्वेताश्वतरा उपनिषद में आया, ना समदसेति स्थाति रूपम अस्या न चक्षुषा पाश्याति कस्कनैनम, उसका रूप ऐसा है कि कोई देख नहीं सकता, कोई आंख देख नहीं सकती। जब ब्रह्मा के 4 सर होंगे तो देखे जाएंगे। ये वेदास के खिलाफ जा रहा है। तो पता ये चला कि ऋग्वेद बुक नंबर 3 हाइव नंबर 2 वर्स नंबर 1, सस्टेनर, दैट इज विष्णु, विष्णु इज कॉल्ड सस्टेनर। पता ये चला कि विष्णु को हम सस्टेनर, जिसे कहते हैं रब, हम अपने अल्लाह को रब कहते हैं, सस्टेनर कहते हैं। ऋग्वेद में विष्णु कहा जा रहा है, लेकिन फर्क यह है कि विष्णु के 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में कॉन्च शेल है और बाएं हाथ में सुदर्शन चक्र है, डिस्कस। Vishnu has got 4 hands. In the right hand is a conch, a shell. In the left hand is a Sudarshan discus, that is called Sudarshan Chakra. ये वापस उपनिषद यजुर्वेद के खिलाफ जा रहा है। पता ये चला कि ही इज फ्री फ्रॉम एनी बॉडी। और फिर आइए देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, ईश्वर के बारे में। तुलसीदास जी के बारे में मशहूर है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास। फिर उसके बाद तुलसीदास जी के बारे में कहा गया, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। आइए हम देखते हैं कि उनकी बीवी रत्नावली क्या कहती हैं तुलसीदास जी के बारे में। उनका कहना है कि अस्थि चर्ममय देहमम, तामय जैसी प्रीति, तैसी जू श्री राम में होत न तौ भव भीत। रत्नावली जी का कहना है तुलसीदास जी के बारे में कि आप मोहब्बत करो श्री राम जी से। लेकिन आइए देखिए श्री राम जी उस ईश्वर के बारे में और उसकी मोहब्बत के बारे में क्या फरमा रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, खंड नंबर 33, चैप्टर नंबर 3, दोहा नंबर 118, 118, सब दोहा नंबर 2 and 3। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन पानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिन वासा शेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। विदाउट फीट he walks, without ear he hears, without ear he hears, without hands he does various sorts of work of mercy, without hands he does various mercy works, various sorts of works full of mercy.
without tongue, without mouth, that is without tongue. He takes the taste of everything. And without tongue, he is an eloquent speaker. Without body, he touches. And without eyes, he sees. And without nose, he smells. These works of Creator are marvelous. The glorification of the Creator cannot be done. पता है चला, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर बगैर पैर के चलता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर हाथ के नाना प्रकार के अच्छे कामों को करता है, बगैर जिह्वा के स्वाद लेता है, बगैर जिह्वा के अच्छी वाणी को बोलता है। और बगैर जिस्म के लोगों को छूता है, बगैर आंख के देखता है, बगैर नाक के सूंघता है। उसकी महिमा अपरंपार है, उसकी तारीफ कोई भी मुकम्मल नहीं कर सकता। तो पता ये चला कि हिंदू मज़ाहिब की किताबों में आया कि ईश्वर एक है, क्रिएटर एक है, परमात्मा एक है, जिसे हम अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं। वो जिस्म से पाक है। उसके हम देखते हैं पारसी धर्म की किताबों में, इट इज कॉल्ड जोरोस्ट्रियनिज्म और पारसीज्म। आइए इसके बाद हम देखते हैं, नाउ लेट अस सी पारसीज्म और जोरोस्ट्रियनिज्म। द फाउंडर ऑफ पारसीज्म, सो कॉल्ड फायर वर्शिपर्स, Zoroastrianism is Zoroaster. This is the old, very old religion, around 2500 years old. It started in Persia. The script is Zandi, Pahlavi and cuneiform. The scriptures are Dasatir, Vesta or Zendavesta, further divided into two: Kalan Dasatir, Khurda Dasatir, Kalan Avesta, Zendavesta. The name of God is Ahura Mazda. Ahura means God, Mazda means wise. The name of the God is Ahura Mazda. Ahura means God, Mazda means wise. Ahura Mazda means wise God. पारसी धर्म, इसके प्रवर्तक जोरोस्ट्रियन थे, जो 2500 साल पहले वजूद में आया। इसकी शुरुआत पर्शिया में हुई, जो आज का ईरान है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम स्टेट है। इनकी किताबें हैं दसातीर, वेस्ता और ज़ेंडावेस्ता। दसातीर में फरमाया गया खुदा के बारे में, और इनके खुदा का नाम है आहुरा मजदा, वाइज गॉड। आहुरा मीन्स गॉड, मजदा मीन्स वाइज, बुद्धिमान खुदा। दसातीर के मुताबिक there is only one God. He begot none, nor he was begotten. None is equal to him. He is the creator of the universe. He is the sustainer of the universe. He is responsible for all the mercy which person receives on this planet Earth. दसातीर के मुताबिक बताया गया खुदा एक है, न तो उसकी कोई औलाद है, न तो मां बाप है, न तो किसी से पैदा हुआ। खुदा सारी कायनात का बनाने वाला है, और तमाम जो इंसानों पर
जो रहम व करम है वो सब खुदा की जानिब से। आगे फरमाया गया कि एक खुदा की इबादत करो। ज़ोरोस्ट्रियन ने कहा एक खुदा की इबादत करना, और जो टेंपल में जो आग जल रही है इसको जलने देना, उस वक्त तक जलने देना जब तक कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर ना हो जाए। ज़ोरोस्टर सेड दैट लेट द फायर बी किंडल्ड टिल द फाइनल मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। बाद में लोग भूल गए, बहक गए, इन्होंने आग की पूजा शुरू कर दी। हत्ता कि ज़ोरोस्टर ने, इन्होंने आग के सामने शपथ लिया था, एक कसम लिया था कि तुम एक खुदा की इबादत करोगे, उसके अलावा किसी दूसरे की इबादत नहीं करोगे, और इस आग को तब तक जलने देना जब तक ये आखिरी नबी ना आ जाए। और सारा जमाना जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रूहे जमीन पर आए तो ईरान का आतिश कदा बुझ गया, जलती हुई आग बुझ गई। आगे फरमाया जा रहा है, अवेस्ता के मुताबिक इनकी किताब गाथा और यसना में लिखा गया है, ग्रेटर यसना चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 7 and 11, चैप्टर नंबर 44 वर्स नंबर 7, चैप्टर नंबर 50 वर्स नंबर 11, चैप्टर नंबर 51 वर्स नंबर 7. Then second attribute is most mighty, the greatest. Chapter number 33 verse number 11, chapter number 45 verse number 6. And then the next attribute is beneficent, Hudai. Chapter number 33 verse number 11, chapter number 48 verse number 3. Then the fourth attribute is bountiful, that is Penta. It is given in chapter number 43 verse number 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Chapter number 44 verse number 2, chapter number 45 verse number 5, chapter number 46 verse number 9, chapter number 48 verse number 3. इतनी जगह पे लिखा गया कि एक ही खुदा है, वो अल्लाह तबारक व तआला है। आइए उसके बाद हम देखते हैं सिख धर्म की किताबों में कि खुदा का तस्वुर क्या है। सिख का मतलब होता है शिष्य, डिसाइपल, स्टूडेंट या मुरीद। इनकी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे कहते हैं आदि ग्रंथ। ये 10 गुरुओं का धर्म है। द मीनिंग ऑफ सिख इज डिसाइपल और स्टूडेंट। दिस इज द रिलीजन ऑफ 10 gurus, 10 teachers, starting from Guru Nanak, number 1, and the Guru Gobind Singh, the number 10. Sikhs believe in single creator, single God. It is monotheistic religion. Guru Nanak was the founder of this religion. In fact, Sikh religion is offshoot of Hinduism. In fact, Sikh religion is offshoot of Hindu religion. But it is more inclined towards Islam. And in the beginning, it was more inclined towards Islam, and still it is inclined towards Islam. The Guru Granth Sahib contains lots of sayings of Baba Fariduddin. It is said that Guru Nanak was the disciple of, murid of फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये कहा जाता है कि गुरु नानक फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे। इसलिए इस गुरु ग्रंथ साहिब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में फरीदुद्दीन का रहमतुल्लाह ताला अलैह के बहुत सारे अकवाल मौजूद हैं। जैसा कि धर्म 10 गुरुओं का है,
पहले गुरु गुरु नानक जी और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म एक ईश्वर, एक खुदा में यकीन करता है। इनका नाम है करतार, क्रिएटर, साहिब, लॉर्ड, करीम, बेनोवेलेंट, परवरदिगार, चेरिशर, वाहे गुरु जी, ट्रू गॉड एंड ओनली वन गॉड। अगर इनसे पूछो इनके धर्म के बारे में तो ये कहते हैं मूल मंत्र, द एसेंस ऑफ द रिलीजन इज मूल मंत्र। द फर्स्ट चैप्टर, वॉल्यूम 1, जापू जी, it is mentioned that there is only one God, only one creator, Vahe Guruji, the true God. They have got their label, identification, उनकी शनाख्त है। केश, लॉन्ग हेयर, कड़ा, मेटल बैंगल, कॉम्ब, कंघा, कृपान, डैगर, that is the small sword for defense, and at the same time the fifth is kach, that is knee length underwear or underdollar for agility। केश, कंघा, कड़ा, कच और कृपान। गुरु ग्रंथ साहिब में जगह जगह कबीर दास जी के अकवाल मौजूद हैं। Guru Nanak was very much influenced by Sant Kabir, and in Guru Granth Sahib there are lots of couplets of Sant Kabir। Guru Granth Sahib ज्यादा मुतासिर थे संत कबीर से भी, और संत कबीर के बहुत सारे दोहे इस गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है। जैसे कि कबीर दास जी का मशहूर दोहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। I'll tell you, this doha of Sant Kabir is from glorious Quran, chapter number 39, Surah Hujurat, verse number 8. Sant Kabir was born and brought up in weaver family. In weaver family, that is a जुलाहा family. संत कबीर एक जुलाहा फैमिली में इनकी परवरिश हुई। मुसलमानों के करीब थे, कहा जाता है कि इस्लाम में यकीन भी रखते थे कुछ हद तक। अल्लाह आलम, अल्लाह नोज द बेस्ट। नेचुरली जब मुसलमान के घर में थे, इनकी परवरिश हुई, तो इन्होंने कुरान को सुना होगा और उन्होंने इसे दोहे में तब्दील कर दिया। अल्लाह सेज इन ग्लोरियस कुरान, chapter number 39, Surah Hujurat, verse number 8. When the calamity, trouble falls on the man, falls on the human being, he cries and turns in repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah puts mercy on him or her, he or she forgets for what he or she cried and starts setting a rival with Allah subhanahu wa ta'ala to mislead people, to mislead people from the right path. जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो तौबा इस्तगफार करने लगता है, अल्लाह को याद करने लगता है, अल्लाह के सामने झुक जाता है, और जब अल्लाह उस पर अपने रहमो करम की बारिश करता है तो भूल जाता है कि किस परेशानी में वो था, किस लिए अल्लाह तबारक तआला की तरफ रोया और गिड़गिड़ाया था, और अल्लाह के साथ शरीक करना शुरू कर देता है, उसके सीधे रास्ते से बहकाते हुए, उसके सीधे रास्ते से बहकाकर और दूसरे रास्ते पर लाके खड़ा कर देता है। तो पता ये चला कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। अगर हम दुख में अल्लाह को याद तो करते ही हैं, अगर हम सुख में अल्लाह को याद करेंगे तो दुख आने वाला नहीं है, अल्लाह अपने रहमो करम से दुख को दूर कर देगा। आइए उसके बाद हम देखते हैं जुडाइज्म, उसके बाद हम देखते हैं ईसाई मजहब की किताबों में
खुदा का तस्वुर क्या है, जिसे बाइबल कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। जुडाइज्म, जिसे यहूदियत आप कहते हैं, ज्यूज बिलीव इन द मिशन ऑफ द प्रॉफिटहुड ऑफ मोसेस, पीस बी अपॉन हिम। ये यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई किताब को मानते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरेत नाजिल हुई वो ओरिजिनल शक्ल में, मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरेत नाजिल हुई जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, ओरिजिनल शक्ल में मौजूद नहीं है। इसलिए जो चीजें ओरिजिनल मौजूद हैं उसको पता लगाने के लिए हम कुरान का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह कुरान अल्लाह की वो किताब है जो 1400 साल पहले नाजिल हुई और 1400 साल गुजर चुके हैं, जिसमें जरा सा भी फर्क नहीं है और इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत तक इसमें जरा सा भी तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि इसका जिम्मेदार अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। In Judaism, that is Yahudiyat, in the Old Testament, book of Isaiah, chapter number 43, verse number 11, it is said that even I am the Lord, beside me there is no Savior। मैं ही खुदा हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा तुम्हें बचाने वाला नहीं। बुक ऑफ आइज़ाया, चैप्टर नंबर 45, वर्स नंबर 5, आई एम द गॉड, बिसाइड मी देयर इज नो गॉड। मैं खुदा हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं। बुक ऑफ आइज़ाया, चैप्टर नंबर 44, वर्स नंबर 6, I am the first, I am the last, beside me there is no God। मैं पहला हूं, मैं आखिरी हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं। Then Deuteronomy, chapter number 5, verse number 7 and 9, there is only one God। Do not worship any God beside me। Do not make any image of me। Do not worship the birds, the fish, etc., etc. You worship me only। I am the God, the jealous God। सिर्फ मैं ही खुदा हूं, मेरे अलावा किसी दूसरे की इबादत मत करो। कोई मूर्ति मत बनाओ, स्कल्पचर मत बनाओ, कोई इमेज मत बनाओ, जैसे परिंदे की, मछली की, जानवर की, उसकी पूजा मत करो, उसके सामने मत झुको, सिर्फ मेरे सामने झुको और मैं ही सबका पालनहार हूं, मैं ही सबको बचाने वाला हूं। एंड आई एम ओनली द ट्रू गॉड। देन एक्सोडस, chapter number 20, verse number 3 and 5. In this, it is mentioned, do not worship anybody except me. Do not make any image of me above in the heaven, down the earth, beneath the earth, water under the earth. Do not bow to anybody except me। Do not serve anybody। I am the God, the jealous God। इसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे अलावा और किसी की इबादत मत करो। मेरी कोई मूर्ति मत बनाओ, कोई पिक्चर मत बनाओ, कोई फोटो मत बनाओ। उस चीज की जो ऊपर आसमान में है, उस चीज की जो नीचे जमीन में है, उस चीज की जो पानी के अंदर समंदर में है।
किसी के सामने मुझे छोड़ करके मत झुको, मेरे सिवा किसी के सामने मत झुको, मेरे सिवा किसी को खुदा मत मानो, मैं ही खुदा हूं और मुझे जलन होती। तो पता ये चला, इसमें फरमाया जा रहा है कि सिर्फ एक खुदा है। मूसा अलैहिस्सलाम भी इस्लाम ही लाए थे। जब लोगों ने पूछा व्हाट इज द कमांडमेंट्स, पीपल आस्क्ड व्हाट इज द कमांडमेंट, लोगों ने पूछा अल्लाह का हुक्म क्या है, तो मोसेस सेड, डिट्यूरोनोमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, शमा इज़राइलु अडोनाई हयानो अडोनाई इखद, शमा इज़राइलु अडोनाई हयानो अडोनाई इखद। O Israel, listen, my God, my Lord and your Lord is only one God. O Israeli, listen, my God, your God is only one Lord. ऐ इज़राइलियों सुनो, मेरा खुदा तुम्हारा खुदा सिर्फ एक खुदा है, वो अल्लाह तबारक व तआला है। ये हिब्रू में है, शमा इज़राइलु अडोनाई हयानो अडना इखद। There is only one creator of the universe, that is Allah subhanahu wa ta'ala. Now let us see the Christianity that is given in this New Testament of Bible. Only 3 places the word Christian. The word Christianity owes its origin from Jesus Christ. But Jesus Christ himself never said that I have given Christianity as a religion on the planet Earth, or he never said that I am a Christian. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म का प्रवर्तक हूं, या उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं। ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उनका धर्म इस्लाम था। This Christian religion, the word Christian was used for the first time by pagans and the Jews of Antioch in 43 AD, before Jesus had left this planet Earth. क्रिश्चियन वर्ड सबसे पहले पगान और एंटोइक के ज्यूज ने इस्तेमाल किया था, और 43वीं सदी में, उसके बहुत पहले ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गुजर चुके थे। पता ये चला कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्रिश्चियनिटी नहीं लाया था, ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम लाए थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ एक दीन की दावत दिए, और बरोज़े क़यामत तक एक ही दीन हर दीनों पर गालिब होगा, और अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को गलबा अता फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 19, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इंडीड द रिलीजन नियर अल्लाह इज इस्लाम ओनली। अल्लाह के करीब बेहतरीन धर्म सिर्फ इस्लाम है। तो पता ये चला कि क्रिश्चियन धर्म के प्रवर्तक ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि पॉल थे। पॉल ने इसका नाम क्रिश्चियनिटी रखा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जितना क्रिश्चियंस मानते हैं, उससे ज्यादा हम मुसलमान मानते हैं। हम उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक 1,24,000 पूरे अंबिया इकराम को माने, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। तो पता ये चला, वी मुस्लिम्स बिलीव दैट Jesus, peace be upon him, was born miraculously without male intervention. We believe that Jesus, peace be upon him, was born without father, without male intervention, which most of the modern Christians do not believe.
We believe that Jesus, peace be upon him, cured Islam. Jesus, peace be upon him, cured born blind. Jesus alayhi Islam cured the leper. Jesus alayhi Islam gave life to death with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. He cured the born blind with permission of Allah subhanahu wa ta'ala. He cured the leper with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. He gave life to dead with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And let me tell you, the first miracle which Jesus, peace be upon him, he showed, he talked to the people in mother's lap, which is recorded in glorious Quran, Surah Maryam, chapter number 19, verse number 30. मैं आपको बता दूं, इस्लाम वो वाहिद मजहब है, इस्लाम वाहिद मजहब है जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है कि बगैर बाप के पैदा हुए, जबकि मॉडर्न क्रिश्चियंस ये मानने से इनकार करते हैं, वो ये नहीं मानते। आगे मैं आपको ये भी बता दूं, हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जन्मजात अंधों को अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के परमिशन से, अल्लाह की मदद से उन्हें आंखें अता फरमाया करते थे। हम ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से कोढ़ी के मरीजों को शिफा दिया करते थे। हम ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदगी दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से। और हम ये भी मानते हैं कि पहला मोजज़ा जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया लोगों के सामने, आप अपनी मां की गोद में से बोल पड़ते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझ पर किताब दी गई है और मैं पैगंबर हूं, नबी हूं। नबी का मतलब होता है द वन हु कन्वेज द मैसेज ऑफ अनसीन, जो गैब की खबरें देने वाला हो। पता ये चला हम ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई से ज्यादा मानते हैं और उनकी अम्मी के नाम पर सूरह मरियम कुरान में दर्ज है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र सूरह मरियम में है और सूरह अल इमरान में है। पता ये चला कि ईसा अलैहिस्सलाम वॉज द माइटीएस्ट मैसेंजर वी ऑल मुस्लिम्स बिलीव। हमें मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के आप पैगंबर थे और बरोज़े क़यामत तक हर मुसलमान यकीन रखेगा और मानेगा कि 1,24,000 अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे गए अंबिया इकराम हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जीसस पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि व्हाट इज द फर्स्ट कमांडमेंट, वन स्क्राइब आस्क्ड what is the first commandment of the Creator? Jesus, peace be upon him, is saying in the Bible, book of Mark, chapter number 12, verse number 29, the same verse which was said by Moses, peace be upon him, Shama Israelu Adonai Hayanu Adonai Echad, Shama Israelu Adonai Hayanu Adonai Echad, कि Israel, O Israelis, listen, my Lord, Your Lord is the only one God, that is Allah subhanahu wa ta'ala। लिखने वाले ने, कातिब ने जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पहला फरमान क्या है, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हिब्रू में है ये, शमा इज़राइलु एडोनोई हयानो अडनाई खट। ओए इज़राइलियों सुनो, हमारा और तुम्हारा सबका मालिक, सबका खुदा एक है, वो अल्लाह सुब्हान व तआला। Then it is mentioned in the book of John, chapter number 14, verse number 8. Jesus is saying, I am going, I will come back. If you love me, you will be happy that I will go to my Father who is greater than me. मैं जा रहा हूं, अनकरीब मैं आऊंगा, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि मैं फादर से मिलने जा रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला से मिलने जा रहा हूं। वो अल्लाह तबारक व तआला जो मुझसे बड़ा है। मैं आपको बता दूं, हर एक लैंग्वेज का, every language has got its beauty. In English,
For elderly people, father is used. For younger people, son is used. Father for respect and love, son for love. And in this Holy Bible, there are fathers and sons in tons. It doesn't mean the biological father or biological son. मैं आपको बता दूं कि हर एक जुबान का एक अपना तरीका होता है। इंग्लिश में जब अदब देना होता है, बड़ा मकाम देना होता है, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं फादर। ए फादर बायोलॉजिकल फादर नहीं हुआ पैदा करने वाला। यहां फादर से मुराद क्रिएटर, क्रिएटर से मुराद खालिक, खालिक से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और सन से मुराद यहां पे है बंदा। बंदा कहने का मतलब मोहब्बत में सन से मुराद बंदा दिया गया है। यहां पे ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम्हें खुशी होगी कि मैं जा रहा हूं, अपने परवरदिगार से मिलूंगा जो मुझसे बड़ा है। पता है चला ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं, उसके पैगंबर। बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल। मेरा खुदा सबसे बड़ा है। पहली आयत में मैंने बताया ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि मेरा खुदा मुझसे बड़ा है, यहां फरमा रहे मेरा खुदा सबसे बड़ा है। देन बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, in this it is mentioned, I cast out the devil with the spirit of God. मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से, with the spirit of God. Book of Luke chapter number 11 verse number 20, I cast out the demon with the power of God. मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए पावर से, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला से। अल्लाह ने जो कुदरत मुझ में अता फरमाई, मैं उसकी मदद से शैतानों को भगाता। Then again it is given, book of Matthew chapter number 5 verse number 17, 18 and 19, think not that I have come to destroy the laws or the prophets, I have come to fulfill that, till it is fulfilled in a true way. And I say to you, each and every law will remain in the book. Each and every law will remain in the book unless and until it is fulfilled. ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि जो पहले के कानून थे उनको तोड़ दूं। मीन्स अल्लाह का कानून, अल्लाह ने जो कानून आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उन कानूनों को मैं तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि सबके सब कानून इस्लामिक कानून थे। उन कानूनों को तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, और ना तो उन अंबियाए किराम की जो सुन्नतें थी उसके खिलाफ उनको तोड़ने के लिए मैं आया। उनको तोड़ने के लिए मैं नहीं आया हूं, बल्कि उन सुन्नतों को, अल्लाह के कानून को बरोज़े कयामत तक नाफिज करने के लिए आया। आगे उनका कहना है, आगे ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं उसे नाफिज करूं ओरिजिनल सूरत में। और लोगों सुनो, किताब में यह कानून मौजूद रहेगा, और तब तक मौजूद रहेगा जब तक हर एक कानून पर अमल ना होगा, यानी हर एक कानून पर अमल होगा।
हर कानून पर अमल होगा, हत्ता कि इस्लाम का कानून वहदानियत, एक खुदा और तमाम अंबिया इकराम की सुन्नतें, जो तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दिया था, वो सब मैं महफूज रखने के लिए आया हूं। अगले लेक्चर में आप हमारे सुनेंगे कि आपने बशारत भी दी कि आने वाले आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे। उसके बाद बुक ऑफ एक्ट्स, it is said, Jesus of Nazareth approved of God with wonders, miracles and signs done by God on the behalf of Jesus, peace be upon him. That is, wonders, signs as well as miracles God did with Jesus, peace be upon him, with power of Allah subhanahu wa ta'ala in the people. जीसस अलैहिस्सलाम जरिया थे, करने वाला अल्लाह तबारक व तआला था। Here it is said, book of Acts, chapter 2, verse 22, that Allah subhanahu wa ta'ala is saying in this verse and conveying message to Jesus, peace be upon him. Book of Acts, chapter number 2, verse number 22. Jesus of Nazareth, who did miracles, wonders and signs, which God did in the name of Jesus, midst of you, and that is the only God, that is the true God. इसमें बताया जा रहा है कि जीसस ईसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़े दिखाए, वंडर्स दिखाए, निशानियां दिखाई इंसानों के बीच में। हकीकतन ये अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए। ईसा अलैहिस्सलाम जरिया थे, तभी तो मिट्टी का परिंदा बनाते और फूंक मारते, अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन के उड़ जाया करता था। Then it is said, book of John, chapter number 17, verse number 3, if you know this life is the eternal life, there is only one God, the God who sent Jesus, peace be upon him. अगर आप समझो तो ये जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली है। इशारा दे रहा हूं, मुसलमान मरता नहीं, इंतकाल करता है। बरज़ख में भी पूरा मरा नहीं है, बरज़ख की कंडीशन में है, डोरमेंट कंडीशन में है। वापस जिंदा किया जाएगा, रूह डाली जाएगी, महशर के मैदान में आएगा, नेक अमाल के जरिए, प्रॉफिट की मोहब्बत के जरिए जन्नत में दाखिल होगा और हमेशा हमेश रहेगा उसमें। नेक्स्ट वन। डॉक्टर साहब, हिंदू धर्म में रजनीश को कुछ लोग भगवान मानते हैं, आपका क्या कहना है? He has asked a question. Hindus call Rajneesh as Bhagwan Rajneesh. What do you say about it? Let me tell you. Rajneesh is called by Bhagwan Rajneesh. His Osho commune is in Pune, and there it is written on the stone tomb, he never born, never died, but visited the planet Earth between 11th December 1931 to 19th January 1990. He is believed as Bhagwan by a small number of Hindus. Most of the people, they don't believe him as Bhagwan. But some people believe him as Bhagwan. That's why on the stone piece it is written, he just visited. Let me tell you from his biography.
Rajneesh was born in a Hindu family on 11th December 1931 in MP, India. He went to America in 1981. He started Rajneesh Puram. Later on, Americans asked him to leave America. He came back to India. He alleged that he was given slow poison in the jail. After coming to India, in Pune he started Osho Commune. Rajneesh was born from a parent, mother and father. He has relatives. He was having number of diseases like arthritis, diabetes and back problem. Arthritis, diabetes and chronic back problem. He was not given visa to 20 countries. Near about 20 countries he was not given visa. And he died on 19th of Jan 1990. रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए 11 दिसंबर 1931 को। उनका देहावसन, उनकी मौत हुई 19 जनवरी 1990 में। 1981 में रजनीश अमेरिका गए। वहां पे इन्होंने प्रीचिंग शुरू किया और रजनीश पुरम करके एक संस्था खोली। बाद में अमेरिकन्स ने उन्हें अमेरिका छोड़ने पर मजबूर किया, इन्हें जेल में डाल दिया। इनका कहना है कि जेल में इन्हें स्लो पॉइजन दिया गया, इसलिए इनकी मौत हुई। रजनीश जब इंडिया में वापस आए तो इन्होंने पुणे, महाराष्ट्र में पुणे सिटी में इन्होंने ओशो कम्यून की शुरुआत की और वहां टॉम पर लिखा हुआ है स्टोन पीस पर कि नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, विजिटेड द प्लैनेट अर्थ फ्रॉम 11th December 1931 to 19th January 1990। रजनीश न तो कभी पैदा हुए न तो कभी मरे, सिर्फ इस जमीन पर सैर के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक। अब सवाल यह उठता है कि रजनीश पैदा हुए, उनके मां बाप थे, उनके रिलेटिव हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पास दुनिया भर की बीमारियां जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस, क्रॉनिक बैक प्रॉब्लम और 20 मुल्कों के ममालिक के 20 ममालिक का उन्हें वीसा नहीं मिला। तो सवाल यह उठता है कि जो भगवान होगा, जो ईश्वर होगा, जो परमात्मा होगा, क्या वो पैदा होगा? क्या उसकी मूर्ति होगी? अगर भगवान पैदा होगा तो भगवान नहीं रह जाएगा, वो इंसान बन जाएगा। इफ गॉड टेक्स बर्थ, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्नेशन, अवतारवादा। अगर वो जन्म लेगा तो इंसान बन जाएगा, वो भगवान नहीं रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान भी हो, भगवान भी हो। इनके वेदों के मुताबिक, उपनिषद के मुताबिक हमने सिद्ध कर दिया गया है कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, कोई उसे देख नहीं सकता है। रजनीश को सब देखते थे, उनकी फोटो आप देखो, तमाम मैगजीन पे मौजूद है। तो पता है चला, उनकी खुद की किताबों से सिद्ध हो रहा है कि रजनीश भगवान नहीं है। लेकिन बेहतरीन डेफिनेशन ऑफ ए क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गिवन बाय ग्लोरियस कुरान। सबसे बेहतरीन खुलासा खुदा के तस्वुर के बारे में अगर कहीं मिलता है तो ग्लोरियस कुरान में है। ना तो ओल्ड टेस्टामेंट, ना तो न्यू टेस्टामेंट, बट इन द फाइनल एंड द लास्ट टेस्टामेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट इज ग्लोरियस कुरान। Allah says in glorious Quran, chapter number 112, Surah Ikhlas, verse number 1, 2, 3, 4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad,
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद. O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, He is Allah the One. Allah is independent, carefree. He is eternal. He begot none, nor he was begotten. None is equal to him. अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना तो उसकी कोई औलाद है, ना तो किसी से पैदा हुआ, उसके जोड़ का कोई नहीं. चैप्टर नंबर 42 सूरह अश-शूरा वर्स नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शैआ, लैसा कमिस्लिही शैआ, उसके जोड़ का कोई नहीं है, उसके जोड़ की शय नहीं है, कोई चीज नहीं है. कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह इज वन, अल्लाह एक है. क्या रजनीश एक है? मां बाप में पूरा कुंबा है, पूरा खानदान, एंटायर फैमिली इज देयर. इज रजनीश वन? ही इज नॉट वन. ही इज हैविंग रिलेटिव्स, ही इज हैविंग पेरेंट्स, एंड ही इज नॉट वन. ही इज हैविंग एंटायर फैमिली. अल्लाह समद, अल्लाह इज एटर्नल, उसे मौत नहीं है. अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा. अल्लाह हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा. अल्लाह वाज, अल्लाह इज एंड अल्लाह विल रिमेन. रजनीश क्या एटर्नल है? नहीं, रजनीश को मौत आ गई. देयर वॉज एंड फॉर रजनीश, बट फॉर अल्लाह इट्स एटर्नल. अल्लाह इज एटर्नल, अल्लाह को मौत नहीं. अल्लाह को माता पिता नहीं है, वालिदैन नहीं है. रजनीश को तो वालिदैन थे. क्या अल्लाह को बीमारी हो सकती है? माज़अल्लाह कभी नहीं हो सकती. रजनीश को बीमारी हुई. क्या अल्लाह के लिए वीजा की जरूरत है? अल्लाह सारी कायनात का मालिक है. इसकी रोशनी में अल्लाह के जोड़ का कोई नहीं. रजनीश के जोड़ के बहुत सारे ढूंढो तो मिल जाएंगे. पता ये चला, रजनीश was not God. Rajneesh is not God. Rajneesh will never be God. He was only human being. Allahu alam. Allah knows the best. Next one. Some of the Hindus say that our religion is the original religion and your ancestors were idol worshippers and then afterwards they converted into Islam. Wonderful question. Brother has said that some Hindus say that Hinduism is the old religion and you Muslims have adopted from us. Let me tell you, Alhamdulillah, I am Alim and Fazil also, I will take you in little depth. As I told you, and as the scientists Howard Seaberg, Dean Kenyon and Gould is pointing that life did not originate on this planet Earth. It has been imported from somewhere else. It is pointing from Jannah. जैसे ही तीन साइंसदान बता रहे हैं कि जमीन पर जिंदगी का वजूद न हुआ, हमारा वजूद हमारे बाप दादा जन्नत में थे. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम and mother Hawwa have come from Jannah on this planet Earth. And there was only one religion, that was Islam. Inna ad-deena indallahil Islam. अल्लाह के करीब बेहतरीन धर्म इस्लाम. चैप्टर नंबर 3 सूरह इमरान वर्स नंबर 19. वक्त गुजरता गया. Time kept on passing. When in people, their parents, forefathers, they were very famous people. They were thinking how to remember them. There is no time. Time doesn't permit. Iblis put idea in their mind. Don't worry. You make picture of theirs. You make idols of theirs. You will remember them by looking at the picture and idols. People started making their pictures, idols. As the time passed, things went on advancing. They started standing in front of them.
they started putting garland to them and they started worshipping them. जैसा कि मैंने आपको बताया, कुरान पाक में भी मौजूद है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जन्नत में हुई और उनसे मदर हव्वा का वजूद हुआ। आदम अलैहिस्सलाम और मदर हव्वा दोनों जमीन पर आए और उनसे इंसानियत फैली। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों में बड़े बड़े फिलासफर पैदा होने लगे, बड़े बड़े इल्म वाले होने लगे, तो लोगों ने सोचा कि इन्हें याद कैसे किया जाए। तो उनकी याद को ताजा रखने के लिए, उन्हें ख्याल रखने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर सम्मान देने के लिए इब्लीस ने उनके दिमाग में डाला कि क्यों नहीं इनकी तो मूर्ति बना लेते, क्यों नहीं बुत बना लेते। वो लोग बुत बनाना शुरू किए। फिर फोटोग्राफी का जमाना आया, फोटो बनाना शुरू किए, वीडियोग्राफी बनाना शुरू किए। उनके सामने खड़े होते और अपने बाप दादा को देखते तो उनके दिल को सुकून मिलता। शैतान ने और बहकाया, उनके सामने हाथ भी जोड़ने लगे और बहकाया, माला भी पहनाने लगे और बहकाया, उनकी इबादत भी करने लगे। इस तरह से आइडल वर्शिप का वजूद हुआ। तो पता ये चला इस्लाम धर्म पहले था, आदम अलैहिस्सलाम इसके प्रवर्तक थे, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें अपना खलीफा बनाया, नायब बनाया। सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2, an entire verse runs in that। तो पता ये चला कि धीरे धीरे लोग मूर्ति पूजक बन गए और मूर्ति पूजा करते करते एक धर्म बना, दूसरा धर्म बना और अलग अलग तमाम मज़ाहिब आने लगे। लेकिन हकीकतन पहला और आखिरी धर्म वो इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज द बेस्ट। नेक्स्ट वन। खतना के मेडिकल में बेशुमार फ़वायद हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ मुसलमानों के अलावा यहूदियों में भी ये होता है। मैं जानना चाहता हूँ ये सिलसिला कब और क्यों शुरू हुआ। Very good question. Doctor has asked a question. In medicine, there are many benefits. He should ask a question, in fact, whether these medicines originated from Quran and Muslims propagated the medicines, they did research on that, or the modern peoples, they created allopathic medicines and this healing started with the help of, a quick healing started with the help of modern allopathic medicines. In that regard, I'll say, Allah is saying in glorious Quran, chapter number 16, Surah Nahl, verse number 68, 69. And your Lord taught the bees to build their houses in the hills, on the trees, and the habitations of human beings, and follow the path of their Lord, and eat the produce of all the plants, and comes from their bellies a liquid of varying color in which there is healing. और आपके खुदा ने एक खिताब हो रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और एक मैसेज है मध की मक्खियों के लिए कि आपके खुदा ने मध की मक्खियों को सिखाया कि वो अपना घर बनाएं पहाड़ियों में, दरख्तों पर और इंसान के रिहाइश के घरों में, और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें, और तमाम फूलों का रस चूसे और उससे शहद बनता है जिसके मुख्तलिफ कलर है,
और उसमें शिफा है। 1400 years before in glorious Quran, 1400 साल पहले। और कुरान में यह भी है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ईमान वालों के लिए इसमें शिफा है, काफिरों के लिए नुकसान, इसलिए कोई इस पर अमल नहीं करते। I'll tell you, Von Frisch got the Nobel Prize for bee dawns and the habitations of bees in 1971। वॉन फ्रिश को नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। कुरान 1400 साल पहले फरमा रहा है कि इसमें हीलिंग है। इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर रशियन सोल्जर्स वेयर यूजिंग एन एंटीसेप्टिक। इन हनी एंड सिनामन, दालचीनी, इन दोनों के मिक्सचर में आर्थराइटिस, अस्थमा, प्लेग, कैंसर, स्टमक अपसेट, नंबर ऑफ डिजीजेस की बीमारी का इलाज मौजूद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीमुशान सुन्नत है, आप डेली शहद खाया करते थे। इस कुरान से मुस्लिम साइंसदान, मुस्लिम डॉक्टर्स, मुस्लिम herbalist, Ahmad was the first herbalist. He prepared number of drugs from herbs and plants. And Ibn Baitar was the botanist. He traveled for 5 years to turn the life of plants. Ibn Baitar 5 साल तक सफर करते रहे ये पौधों की जिंदगी के बारे में और उनका इस्तेमाल दवा के बारे में। यूनानी मेडिसिन हुजूर के दौर से होती आ रही है और इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत तक ये पैती रहेगी। पता ये चला, वॉट एवर डॉक्टर्स केम लेटर ऑन एंड हाउ इट गॉट शिफ्टेड फ्रॉम इस्लामिक मुस्लिम साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स टू मॉडर्न, बिकॉज इफ यू रिमेंबर व्हेन मंगोल हुलागू खान II defeated the second Abbasi caliph, collected 4 lakh volumes of the books in Syria। हुलागू खान II की आर्मी ने जब सीरिया में अब्बासी कैलिफ को हराया, वहां पे 4 लाख वॉल्यूम किताबों को जमा किया। ये किताबें जो ट्रेजर थी, खजाना था, मुसलमानों के हाथे से निकल गई और यूरोपियंस के हाथे में पहुंची और वहां पर इन्होंने ट्रांसलेट किया, उसका इस्तेमाल किया। हम मुसलमानों के पास किताबें ही ना रही तो इल्म कहां से रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम करवट बदल रहा है। आज की तारीख में हमारे बच्चे बोर्ड और यूनिवर्सिटीज में टॉप भी कर रहे हैं और हमारे बच्चे और हमारे मुस्लिम साइंसदान, हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स लाइन में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम अपने ओरिजिनल कंडीशन में फिर आएगा। लेकिन चाहिए कि कुरान का मुताला करे, इसको चूमते हुए अपने दिल की निगाहों से चूमे, दिल में बसाए, इस पर अमल करे और हुजूर की मोहब्बत की नजरों से देखें। अल्लाहु आलम, अल्लाह नोज द बेस्ट। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। थैंक यू वेरी मच।